Hello students, welcome to Bloomcap. I'm your trainer of English, Vibha Chawla, and I welcome you all to this session. This is my brief introduction. You can pause and read it if you want to. Now let's proceed to our topic, that is Introduction to Parts of Speech. This is the most important topic because parts of speech is the base of grammar. Okay, so are you all ready to learn this very important topic? All right, if that is the case, then let's proceed and first have a look at what are the parts of speech. So basically there are 8 parts of speech in English grammar, which are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and last but not the least, interjection. So these are the 8 parts of speech which we have to discuss in this particular session. Okay, so let's begin with the very first part of speech, that is noun. Noun is basically the name. Okay, noun क्या होता है? Noun किसी भी चीज का नाम होता है. It can be the name of a person, an animal, a place, a thing, feeling, or even an idea. Okay, for example, teacher, tiger, town, umbrella, happiness, chair, table, Vibha, AC, fan, bed. All these are what? All these are nouns. ठीक है? Anything around you that you can name is a noun. Okay? जिस भी चीज का नाम दे पाओ, that is a noun. So we can simply say in other words, nouns are the naming words. Okay? Nouns are the naming words. Now, if you have understood what is a noun, can you spot the nouns in these sentences? We have first sentence here. Ria is a beautiful girl. Can you spot the nouns in this sentence? First one is Ria. Is a name of a girl? No, it's a name of a girl, so it's a noun. Girl. Girl भी तो किसी चीज का नाम ही है ना? मतलब आप किसी person को बोलते हो ना girl, right? So it is also a noun. Diamond. Diamond is the hardest substance. तो एक substance का नाम है diamond, so it is also a noun. Even substance, ये word भी आपका क्या है? Noun. Now, this car belongs to me. Now, यहाँ पर noun क्या है? Car. एक चीज है ना जिसका आप नाम देते हो, कार है ये, right? तो car is a noun. This is the best novel that I have read. ये मतलब सबसे अच्छा नोवेल है जो आज तक मैंने पढ़ा है. तो नोवेल इज ऑल्सो अ नेम. ठीक है, बुक होती है ना, बुक बोलो, नोवेल बोलो, इट इज अ नेम, so means it's also a noun. So I hope you have understood what is a noun. So now let's come to the next part of speech, that is pronoun. Now what is this pronoun? अभी आप nouns पढ़कर आए हो. प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है किसी भी सेंटेंस में टू अवॉइड इट्स रिपीटिशन. नाउ व्हाट डज इट मीन? लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. उससे पहले आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ना कि प्रोनाउंस वर्ड्स होते क्या हैं, राइट? सो दीज आर द प्रोनाउंस. I, we, you, he, she, it, they, me, us, him, her, them. All these are what? All these are examples of pronouns. Okay. तो ये नाउन की हम जगह पर लगाते हैं ताकि कोई भी नाउन ना बार बार रिपीट ना होता रहे. नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए वी प्लेस प्रोनाउन. ओके. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स रीड दिस पैराग्राफ. आप इस पैराग्राफ को एक बार खुद से रीड करो, आपको खुद पता चलेगा कि यहाँ पर ना कुछ रिपीटिशन हो रहा है. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं. जॉन इज एन इंजीनियर. जॉन वर्क्स इन अ फैक्ट्री वेयर जॉन रिपेयर्स मशीन. जॉन लाइक्स हिज प्रोफेशन. जॉन हैज अ सिस्टर. हर नेम इज एलिस. एलिस इज अ टीचर बाय प्रोफेशन. जॉन एंड एलिस लिव इन दिल्ली. जॉन एंड एलिस हैव बॉट अ न्यू हाउस. The house has 3 rooms. John and Alice like this house very much. Now, did you realize something? कुछ आपको अजीब सा लगा इस पैराग्राफ को रीड करने में? I hope yes. What did you realize? क्या आपने यहाँ पर देखा कि क्या हो रहा है? यहाँ पर कुछ
रिपीट हो रहा है, राइट? ये सर्टेन वर्ड्स, सर्टेन नाउन्स, जॉन, है ना, जॉन बार बार आप देख रहे हो ये रिपीट हो रहा है, एलिस, राइट, जॉन एंड एलिस। सो यहाँ पर ये जो नाउन है जॉन या फिर एलिस या फिर हाउस, ये बार बार रिपीट ना हो उसी के लिए वी यूज प्रोनाउंस। नाउ रीड दिस पैराग्राफ। John is an engineer. He works in a factory where he repairs machine. He likes his profession. He has a sister. Her name is Alice. She is a teacher by profession. They live in Delhi. They have bought a new house. It has 3 rooms. They like it very much. Better, right? So यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हमने जॉन को बार बार ना लिखकर एक प्रोनाउन यूज किया he, which we use for a male, right? Likewise हमने बार बार एलिस ना लिखकर एक प्रोनाउन यूज किया फॉर फीमेल जो हम यूज करते हैं she is a teacher, right? उसके बाद हमने जॉन एंड एलिस ना बोलकर हमने प्लूरल एक प्रोनाउन का यूज किया they, right? नाउ उन्होंने एक हाउस खरीदा, हमने बार बार हाउस ना लिखकर नॉन लिविंग थिंग के लिए जो हम एक प्रोनाउन यूज करते हैं इट, उसका यूज किया। दे हमने यूज किया जॉन एंड एलिस प्लूरल के लिए, इट हमने यूज किया फॉर हाउस। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द प्रोनाउन। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स व्हिच वी प्लेस एट द प्लेस ऑफ अ नाउन, ठीक है, टू अवॉइड इट्स रिपीटिशन। नाउ कैन यू स्पॉट प्रोनाउंस इन दीज सेंटेंसेस? Rama painted this picture. It is beautiful. आपने देखा यहाँ पर लिखा था पिक्चर, तो मैंने दोबारा द पिक्चर ना बोलकर उसके प्लेस पर क्या लिख दिया, एक प्रोनाउन इट। ओके, आप ऐसे भी बोल सकते थे द पिक्चर इज ब्यूटीफुल, पर वो पिक्चर फिर रिपीट होता, इसलिए तो बने हैं प्रोनाउंस इट इज ब्यूटीफुल। ऑलराइट, जॉन इज माय कजन, ही लिव्स इन दिल्ली। अगेन मैंने यहाँ पर जॉन को दोबारा ना लिखते हुए एक प्रोनाउन यूज किया फॉर मेल जो हम यूज करते हैं he lives in Delhi. I am fond of chocolates. I is also a pronoun, है ना, मैं बार बार विभा बोलती रहूं, उसके प्लेस पर मैं बोल दूंगी I am fond of chocolates. We are proud of our motherland. We भी एक प्रोनाउन है, मतलब हम अपनी मदरलैंड पर प्राउड है, उस पर हम गर्व करते हैं। I hope you understood what is the pronoun. Okay, now let's come to the next part of speech, that is adjective. Now what is this adjective? You have learned nouns, you have learned pronouns. Now the words which qualify nouns or pronouns are called adjectives. ऐसे words जो noun या फिर pronoun को qualify करते हैं, उन words को बोला जाता है क्या? Adjective. For example, friendly cat. Cat is a noun. Noun है cat, है ना, किसी एनिमल का नाम है। कैसी कैट है? फ्रेंडली। किसको क्वालिफाई किया फ्रेंडली ने? एक नाउन कैट को, तो इट इज एन एडजेक्टिव। रेड पोटैटोज, पोटैटोज इज अ नाउन। कैसे पोटैटोज है? रेड, तो रेड इज एन एडजेक्टिव। हॉट कॉफी, कॉफी इज अ नाउन। कैसी कॉफी है? हॉट कॉफी या फिर कोल्ड कॉफी, है ना, तो हॉट एंड कोल्ड आर adjectives. Let's have a look at some more examples. Riya is a beautiful girl. Girl is a noun, right? कैसी girl है? Beautiful, सुंदर। तो girl एक noun को qualify किया, beautiful ने, so the word beautiful is an adjective. He is clever. He is a pronoun. अभी आप पीछे पढ़कर आए हो। he कैसा है? he को किसने क्वालिफाई किया? इस वर्ड क्लेवर ने, so clever is an adjective. I hope you are getting my point. What is an adjective? The cake is delicious. Cake एक noun है। Cake कैसा है? Tasty है, delicious है, so delicious is an adjective. That is a very huge building. Building is a noun, है ना, एक चीज है, उसका नाम है building. कैसी building है? Huge है, बहुत बड़ी है ना, huge means large, right? So huge is an adjective. We have 2 hands. Hands is a noun. कितने hands हैं? 2. किस word ने qualify किया hands को? 2 ने, so 2 is an very good adjective. So I hope you have understood what is an adjective
Adjective is a word that qualifies a noun or a pronoun. Now, can you spot the adjectives in these sentences? He is an honest boy. Boy एक noun है. कैसा boy है? Honest. So honest is an adjective. Ria is a beautiful girl. कैसी girl है? Beautiful. So beautiful is an very good adjective. We like sweet mangoes. Mangoes एक noun है. कैसे mangoes है? मीठे हैं, sweet है. So the word sweet is an adjective here. He keeps his toys in a large box. कैसे box में रखता है? बड़े से box में. So again box एक noun है जिसको qualify किया large ने. So large becomes adjective. I hope you understood. Very good. Now let's proceed to the next part of speech, that is verb. Now, a verb is a part of speech that generally tells us what the subject is doing. Verb क्या दिखाती है generally कि subject क्या कर रहा है. मतलब आपके जो sentence में कोई noun है, pronoun है, जिस भी person की किसी भी चीज की बात कर रहे हो, वो कर क्या रहा है, right? That's what verb tells us. Examples: write, लिखना एक काम है ना, कुछ भी काम. राइट, डांस करना. रन यानी कि भागना. ड्रिंक यानी कि पीना. राइड है ना, कुछ भी राइड करना. बाइसिकल राइड करते हो आप, बाइक राइड करते हो, कुछ भी चलाना. राइट. सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ वेरी गुड वर्ब्स. नाउ अ वर्ब इज मच मोर देन दैट. आपको अगर लग रहा हो कि वर्ब सिर्फ यही बताता है कि क्या काम हो रहा है ना, क्या किया जा रहा है, क्या एक्शन हो रहा है, सो इट इज नॉट सो. No doubt verb tells you about the action, but in addition to that, a verb is a word that also expresses a feeling. ठीक है, action तो दिखाता ही है, उसके साथ साथ ये आपको feeling भी दिखा सकता है. verb आपका possession यानी कि किसी चीज पर आपका अधिकार भी दिखाता है. moreover ये आपका state of being, आपका state of existence भी बताता है. for example, यहाँ पर हम इन सारी चीजों के एग्जाम्पल्स देखें. John eats apples. Eat is an action. Okay, so it's a verb. We went to the market. हम मार्केट गए, जाना एक एक्शन है, so it's a verb. He loves cars. अब love करना कोई एक्शन नहीं है ना, it's a feeling. Love, hate, these are feelings, but it is also a verb, right? She is a teacher. वो एक टीचर है. अब यहाँ पर भी कोई एक्शन तो नहीं हो रहा, यहाँ पर बस एक स्टेट बताया जा रहा है कि वो टीचर है ना. तो वर्ब आल्सो टेल्स अस फीलिंग और स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस. आई एम अ स्टूडेंट. मैं एक स्टूडेंट हूँ. यहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पर बस स्टेट बताई जा रही है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ. ही हैज अ पेन. आई हैव अ कार. यहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पर तो पोजेशन दिखाया जा रहा है कि उसके पास पेन है, मेरे पास एक गाड़ी है. राइट. तो आपका वर्ब क्या क्या दिखाता है? कोई भी एक्शन, कोई भी फीलिंग, किसी का भी स्टेट बताता है कि वो टीचर है, डॉक्टर है, स्टूडेंट है, या फिर उनका पोजेशन, क्या चीज वो उनके पास है, क्या चीज वो पोजेस कर रहे हैं, कि उनके पास गाड़ी है, उनके पास पेन है, उनके पास लेट्स से टेबल है, कुछ भी है. राइट. सो दैट इज अ वर्ब. Now, if you have understood verbs, can you spot the verbs in these sentences? Reena eats a mango. Ram drives his car. Mr. Sharma works in a factory. My sister is a really good dancer. Can you spot the verbs here? Reena क्या करती है? Mango खाती है, एक action है. Eats. Eats is a verb here. Ram drives his car. Ram अपनी कार drive करता है. So drive is a verb here. Mr. Sharma works in a factory. Mr. Sharma factory में काम करते हैं. So काम करना एक action है. So works is a verb here. My sister is a really good dancer. यहाँ पर भी is verb है क्योंकि यहाँ पर ये state बता रहे हैं, है ना. यहाँ पर कोई action नहीं है, यहाँ पर state बताया जा रहा है. So that is also a verb. Understood? Okay. Now let's come to the next part of speech, adverb. Now what is an adverb? An adverb is a word that qualifies a verb, an adjective or another adverb. आपने adjective पढ़ लिया, आपने verb पढ़ लिया, है ना. Adverb वो word होता है जो किसी भी verb को
या फिर किसी एडजेक्टिव को या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को ही क्वालिफाई करता है। एग्जाम्पल्स, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, जिससे आपको उन एग्जाम्पल्स में एडवर्ब आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। एडवर्ब आपका ना इन क्वेश्चंस का आंसर करता मिलेगा। हाउ, कैसे, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, हाउ ऑफन, कितनी बार, टू व्हाट डिग्री, मतलब किस एक्सटेंट तक वो काम हो रहा है, ठीक है। सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ एडवर्ब। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट एग्जांपल्स। ही रन्स फास्ट, आपने देखा था अभी कि रन क्या एक वर्ब है, एक एक्शन है। अब वो रन कैसे कर रहा है जो आपको ये बता देगा वो एडवर्ब है। फास्ट रन करता है, स्लो रन करता है, दैट इज एन एडवर्ब। फास्ट इज एन एडवर्ब। ही रन्स वेरी फास्ट, रन्स वर्ब है। अभी हमने देखा फास्ट एडवर्ब है जो क्वालिफाई कर रहा है रन वर्ब को। अब फास्ट भी कितना, बहुत फास्ट, वेरी फास्ट। सो वेरी भी क्या है आपका यहाँ पर एक एडवर्ब है, क्योंकि इसने किसी एक दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर दिया है फास्ट को। गेटिंग माई पॉइंट? शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल एक एडजेक्टिव है। अभी हम पीछे सीख कर आए हैं एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। शी एक प्रोनाउन है, उसको क्वालिफाई किया ब्यूटीफुल ने, ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव। अब कितनी ब्यूटीफुल है, वेरी ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, फेयरली ब्यूटीफुल, राइट। सो दीज वर्ड्स आर एडवर्ब्स, एक्सट्रीमली, वेरी, फेयरली, स्लाइटली, ऑलराइट। आई विल कॉल यू लेटर। अब देखो वर्ब है यहाँ पर कॉल करना, कब कॉल करूंगा मैं तुम्हें, बाद में, लेटर। तो व्हेन का आंसर भी कौन करता है, एडवर्ब। सो लेटर इज एन एडवर्ब हियर। शी स्पीक्स पोलाइटली, कैसे बोलती है वो, हाउ का आंसर करता है एडवर्ब, पोलाइटली। ही गोज टू टेम्पल डेली, कब जाती है वो मंदिर, सॉरी कब जाता है ना, ही कब जाता है वो मंदिर, रोज, डेली। सो डेली इज एन एडवर्ब। ही ऑलवेज कम्स लेट, वो हमेशा कैसे आता है, लेट आता है। तो लेट इज एन एडवर्ब। बेसिकली यहाँ पर आंसर हुआ व्हेन, है ना, कैसे नहीं, कब आता है, लेट आता है, या कभी भी नहीं आता है, या जल्दी आता है ना। सो अर्ली, लेट, नेवर, राइट, ऑलवेज, इवन ऑलवेज इज एन एडवर्ब हियर। ओके, ऑलवेज या फिर कभी नहीं, नेवर, है ना। तो दीज आर ऑल्सो एडवर्ब्स कि वो कब आता है, हमेशा आता है, राइट। कम हेयर, यहाँ आओ, कहाँ पर आओ, वेयर का आंसर भी कौन करता है, एडवर्ब। कम हेयर, गो देयर, राइट। सो हेयर एंड देयर आर आल्सो एडवर्ब्स। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज एन एडवर्ब, which qualifies a verb, an adjective, or an another adverb. Okay, now can you spot the adverbs in these sentences? He drives the car carefully, कार चलाता है ना, ड्राइव इज एन एक्शन। अब वो एक्शन कैसे हो रहा है, ड्राइव तो वर्ब है, कैसे ड्राइव करता है, केयरफुली, बहुत ही ध्यान से ड्राइव करता है। सो केयरफुली इज एन एडवर्ब। गो देयर, अभी मैंने आपको बताया कम हेयर, गो देयर, सो देयर इज एन एडवर्ब। कहाँ जाओ, वहां जाओ। द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, फॉट मीन्स लड़ना, एक्शन। कैसे लड़े वो, ब्रेवली, बहुत ही बहादुरी के साथ। सो ब्रेवली इज एन एडवर्ब। आई मेट माई फ्रेंड येस्टरडे, मेट एक वर्ब है, वर्ब मिलना। कब मिला मैं अपने फ्रेंड से, कल, बीता हुआ कल, येस्टरडे। सो येस्टरडे इज एन एडवर्ब। ऑलराइट, तो आपने देखा यहाँ पर वर्ब्स को क्वालिफाई किया है ना, ड्राइव, गो, है ना, यहाँ पर गो वर्ब को क्वालिफाई किया, यहाँ पर फोर्ट को क्वालिफाई किया, यहाँ पर मेट को क्वालिफाई किया। किन वर्ड्स ने, केयरफुली, देयर, ब्रेवली, येस्टरडे, है ना। सो ऑल दीज आर कॉल्ड एडवर्ब्स। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, preposition. Now what is this preposition? Preposition आपका वो वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन को बाकी सेंटेंस से लिंक करता है। ऑलराइट, क्या होता है preposition? जो आपके सेंटेंस में नाउन या फिर प्रोनाउन को लिंक करता है बाकी सेंटेंस से। एग्जाम्पल्स बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पर पिक्चर में क्लियर हो रहा है।
एक एप्पल है और एक बॉक्स है ना, इसी की हेल्प से हम यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरा पूरा प्रपोजिशन देख लेंगे। अब देखो यहाँ पर जो एप्पल है, नाउन है, वो बॉक्स के ऊपर है ना, तो हम वो दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ ऑन। सो ऑन इज अ प्रपोजिशन। यहाँ पर देखो एप्पल बॉक्स के अंदर है, इन। यहाँ पर एप्पल बॉक्स के साथ में रखा हुआ है, नेक्स्ट टू, बिसाइड, जिसको आप बिसाइड भी बोलते हो ना, साथ में। यहाँ पर देखो एप्पल बॉक्स के सामने है, इन फ्रंट ऑफ। यहाँ पर एप्पल बॉक्स के पीछे है, बिहाइंड। तो हम कैसे बोलेंगे इन सेंटेंसेस को? द एप्पल इज ऑन द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर। तो एप्पल नाउन को लिंक किया बाकी सेंटेंस से इस प्रेपोजिशन ऑन ने, राइट? Likewise, the apple is in the box here. Here the apple is beside the box, side में. Here the apple is in front of the box, मतलब सामने. Here the apple is behind the box, मतलब पीछे, right? Some more examples. Here we can see apple is between the two boxes. दो boxes हैं, उनके बीच में apple है, right? The apple is between the two boxes. Here, यहाँ पर एप्पल देखो बॉक्स के बीच में से जा रहा है, तो उसके लिए preposition यूज होता है through. The apple has gone through the box. Next we have is नीचे, under. यहाँ पर एप्पल बॉक्स के नीचे है, so the apple is under the box. यहाँ पर देखो बहुत सारे एप्पल्स है और आसपास है बॉक्स के, है ना, आप देख सकते हो एप्पल्स बॉक्स के आसपास है चारों तरफ। So, चारों तरफ कौन सा preposition दिखाता है? Around. The apples are around the box. Alright? So, all these words which you have seen here, between, under, through, in, on, around, all these are what? Prepositions. क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? Basically, यहाँ पर ये एक noun को बाकी सारे sentence से link करने का काम कर रहे हैं. So, that's what is a preposition. Okay? Now, let's come to the exercise. Preposition आपने सीखा, so now you have to spot the prepositions in these sentences. Come on, tell me. The cup is on the table. क्या preposition है यहाँ पर? Cup एक noun है, वो टेबल के कहाँ पर है? टेबल के ऊपर है, on the table, है ना? जैसे the apple is on the box, the cup is on the table. So on is a preposition. Guests are in the lounge. Guests कहाँ पर है? Lounge में है, है ना? In. Guests, lounge में है. In is a preposition. My shoes are where? Under the table. Table के नीचे है ना? मेरे shoes table के नीचे हैं. Under is a preposition. She sat beside me. वो मेरे साथ में बैठी. So beside is a preposition. Getting my point? क्या है prepositions? In, on, by, with, under, beside. You know, all these are what? Prepositions. Now, if you have understood this, let's move on to the next important part of speech, conjunction. Now, conjunction आपका वो word होता है जो connect करने का काम करता है. Okay, C for conjunction, C for connect. किसको connect करता है ना? Now the question arises, conjunction किससे connect करता है? So it can connect two words, two phrases or two clauses. दो words को भी कर सकता है, दो phrases को भी कर सकता है और दो clauses को भी कर सकता है. Alright? Phrase क्या होता है और clause क्या होता है, ये एक बार छोटा सा हम यहाँ पर concept देख लेते हैं. If you have no idea, see. Word तो सभी को पता होगा ना? Conjunction is a word that, all these are what? All these are words. ठीक है, ये तो सारे words हैं. अगर आप इन वर्ड्स का ग्रुप ले लो, मतलब एक से ज्यादा वर्ड्स ले लो, तो वो आपके बन जाते हैं फ्रेज और क्लोज. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला इन द क्लास, देयर आर 3 वर्ड्स, इट इज अ फ्रेज. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड अ क्लोज? आपको फ्रेज में कहीं पर भी सब्जेक्ट या वर्ब नहीं दिख रहा, है ना, लेकिन जो आपका क्लोज होता है ना, क्लोज में आपको सब्जेक्ट या वर्ब दिखेगा. For example, I am.
आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये इनकम्प्लीट है, बट इट इज कंप्लीट एंड इट इज अ क्लोज, और यू कैन से अ सेंटेंस, क्योंकि क्लोज भी बेसिकली क्या होता है ना, एक सेंटेंस का पार्ट ही होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट हो और उसके पास अपनी एक वर्ब हो। ठीक है, यहाँ पर देखो आई इज अ सब्जेक्ट, एम इज अ वर्ब, सो इट इज अ क्लोज। जहां पर आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिख रहे हैं लेकिन सब्जेक्ट या वर्ब नहीं दिख रहा, तो वो फ्रेज है। इन द क्लास एक फ्रेज है, आई एम विभा, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, दैट इज अ क्लोज। ऑलराइट, तो अभी सिर्फ इतना समझ लो सिंपली, क्योंकि फ्रेज क्लोज बहुत ही डीप है टॉपिक, ठीक है, ये हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो, सिंपल जो एक वर्ड लिखा है दैट इज अ वर्ड। अगर आप दो या दो से ज्यादा वर्ड्स लिख लेते हो, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, so that becomes your phrase or clause. इन्हीं को कनेक्ट करता है कौन? Very good, conjunction. Now there are some examples of conjunctions you can see here. Let me erase all this. Okay. And, but, or, because, though, yet, so, all these are conjunctions जो कनेक्ट करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे फॉर मोर क्लैरिटी। यहाँ पर सबसे पहले देखो वर्ड टू वर्ड, दो वर्ड्स को कैसे कनेक्ट करता है कंजंक्शन। दिया एंड टिया आर बैचमेट्स, दो गर्ल्स है यहाँ पर, दिया एंड टिया, उनको कनेक्ट किया एक कंजंक्शन एंड में। ठीक है, दिया और टिया। ही इज रिच बट माइजर, दो वर्ड्स है यहाँ पर, रिच और माइजर, वो अमीर है लेकिन कंजूस है। किसने कनेक्ट किया? एक कंजंक्शन बट ने। ना ये तो वर्ड्स की बात। अब ये कैसे फ्रेजेस को कनेक्ट करता है? एग्जाम्पल, द गोल्ड इज हिडन एट द बीच और बाय द लेक साइड। गोल्ड जो है ना वो छिपा है, ठीक है, कहां पर छिपा है? या तो बीच पर या फिर लेक साइड। दो फ्रेजेस है ना, एट द बीच, बाय द लेक साइड, किसने कनेक्ट किया? एक कंजंक्शन और ने। ही seemed poorly groomed yet well mannered. ग्रूम मीन्स ड्रेस अप होना, राइट। वो दिख रहा था, मतलब अच्छा ज्यादा ग्रूम नहीं था ना, थोड़ा ठीक ठाक ही था, लेकिन वो वेल मैनर्ड था, मतलब उसमें मैनर्स थे, राइट। तो यहाँ पर भी दो फ्रेजेस को किसने कनेक्ट किया? एक कंजंक्शन येट। ये हुई फ्रेजेस की बात। अब बात करते हैं क्लोजेस की। क्लोजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन उसमें देखो सब्जेक्ट और वर्ब होता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, है ना, ये क्लोजेस है। द वेदर इज कोल्ड, इट्स अ फर्स्ट क्लोज। वी एंजॉयड, इट इज एन अनदर क्लोज। किसने ज्वाइन किया? एक कंजंक्शन गेट। व्हाट यू से, जो तुम बोलते हो, क्लोज नंबर वन। व्हाट यू डू, जो तुम करते हो, क्लोज नंबर टू। दोनों को कनेक्ट किया एक कंजंक्शन एंड ने। जो तुम बोलते हो, जो तुम करते हो, वो दोनों अलग चीजें हैं, आर टू डिफरेंट थिंग्स। So I hope it is clear. Conjunction can connect to words, to phrases, or even to clauses. So now, if you have understood this, can you spot the conjunctions here? Quickly. अब तो आप देख चुके हो, बहुत सारे examples देख चुके हो. Ram and Shyam are best friends. Quickly tell me. Ram, Shyam. Can you see the two words here? Connected with and. Reema can paint. Okay. She cannot sing. You can see two clauses here, है ना? Clauses क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखो सब्जेक्ट और वर्ब गिवन है, राइट। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। किसने कनेक्ट किया? कंजंक्शन बट ने। आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ, बुक पढ़ सकता हूँ, या बुक पढ़ सकता हूँ, है ना, वो या, वो कनेक्ट किसने किया? और कंजंक्शन। शी इज नॉट कम, वो नहीं आई है, वो बीमार है। किसने कनेक्ट किया? इस बिकॉज ने, क्योंकि ने। वो नहीं आई है क्योंकि वो बीमार है, सो क्योंकि, बिकॉज इज अ कंजंक्शन हियर। ऑलराइट, सो यहाँ पर कंजंक्शंस आर एंड, बट, और, एंड, बिकॉज। क्लियर? Okay, now let's come to the last part of speech, interjection. It is very very interesting. Interjection क्या होता है? इंटरजेक्शन ना बेसिकली आपके वो वर्ड्स होते हैं जो आपकी फीलिंग्स दिखाते हैं, आपकी इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं।
आप खुश हो, आप सैड हो, है ना, मतलब आपकी क्या फीलिंग्स है उस टाइम पर, क्या आपके इमोशंस है, उन वर्ड्स को दिखाया जाता है बेसिकली इंटरजेक्शन की हेल्प से। एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल आप मैच जीत गए तो आप खुश हो रहे हो, वो खुशी आपने एक्सप्रेस की विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड हुर्रा। किसी की डेथ हो गई मान लो, है ना, वो आपने जो एक सैड फीलिंग है वो एक्सप्रेस की विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड एलास। कोई बहुत ही सुंदर है तो आप कहते हैं ना वाओ, है ना, कोई भी चीज है, कोई भी पर्सन है, यू से वाओ यू लुक सो ब्यूटीफुल, वाओ इट इज सो नाइस। सो वाओ इज अगेन एन इंटरजेक्शन। oops, sorry it was my fault, तो ये जो oops आप बोलते हो that is again an interjection। bravo you spelled it correctly, किसी को आप congratulate करते हो, है ना, वो भी किसकी हेल्प से करते हो, इंटरजेक्शन, कि तुमने इसे करेक्टली स्पेल किया, बहुत ही सही तुमने स्पेलिंग बताई है, bravo, right, to congratulate someone। so all these words are interjection which helps you show your feelings, your emotions। okay, so दिस वॉज इट। ठीक है, ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे। नाउ एक मिक्स्ड एक्सरसाइज। अभी तो अब ये हो रहा था ना, अपने नाउन्स पढ़े, नाउन्स की एक्सरसाइज आई, प्रोनाउंस पढ़े, प्रोनाउंस की एक्सरसाइज आई। नाउ हियर यू हैव अ मिक्स्ड एक्सरसाइज कि यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स बोल्ड में गिवन है, यू हैव टू टेल मी इट्स पार्ट ऑफ स्पीच। आप सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर चुके हो। नाउ यू हैव टू टेल मी द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस क्विकली। आई वॉक टू स्कूल डेली, टेल मी। वॉक एक एक्शन है ना, वॉक चलकर जाना, सो इट इज अ, कम ऑन टेल मी, वेरी गुड, वर्ब, इट्स अ वर्ब। he had a green bowl, he is a pronoun, okay, which you use for a male person। अब देखो यहाँ पर बॉल एक नाउन है, कैसी बॉल है, ग्रीन कलर की, है ना, वो किसने क्वालिफाई किया, नाउन को क्वालिफाई किया एक वर्ड ग्रीन ने, सो ग्रीन इज एन एडजेक्टिव। I bought a beautiful dress, ड्रेस कैसी है, ड्रेस एक नाउन है, वो कैसी है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है, सो ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल कनेक्ट किसने किया, ऑन ने, है ना, एक नाउन को लिंक किया सेंटेंस के साथ, किसने, एक प्रेपोजिशन ने, ऑन ने, राइट। इन, ऑन, बाय, विद हम देखकर आए थे क्या होते हैं, प्रेपोजिशंस होते हैं। रिया इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, एक वर्ड है स्मार्ट, एक वर्ड है इंटेलिजेंट। वर्ड्स को कनेक्ट कौन करता है, दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है कंजंक्शन, सो एंड इज एन, सॉरी, एंड इज अ कंजंक्शन हियर, ऑलराइट। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, राम किसी का नाम है ना, किसी का नाम मतलब नाउन, नाउन इज इक्वल टू नेम, ऑलराइट। बॉय एक नाउन है, कैसा बॉय है, नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एक एडजेक्टिव, सो ऑनेस्ट एडजेक्टिव, ईमानदार, राइट। आई एम अ टीचर, एम ने यहाँ पर मेरा स्टेट बताया, स्टेट बताने वाला वर्ड भी क्या होता है, वो। शी डांसेस ब्यूटिफुली, डांस इज एन एक्शन, है ना, वो डांस करती है, वर्ब, वेरी गुड। कैसे डांस करती है, बहुत ही सुंदरता के साथ, ब्यूटीफुली, सो ब्यूटीफुली किसको क्वालिफाई कर रहा है, एक वर्ब को, वर्ब को क्वालिफाई करता है कौन, एडवर्ब, राइट। आई होप थोड़ा सा आपको शायद समझने में टाइम लगे, बट बिलीव मी, अगर आप इस सेशन को एक बार, दो बार, तीन बार देखोगे, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। सो अगर आपको कोई डाउट भी रह गया तो आप रिवाइंड करके पूरा सेशन देख सकते हो, ठीक है, और फिर खुद से इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना, एंड यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, ऑलराइट। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। व्हाट वी हैव लर्न टुडे इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर कवर किए हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection, all right। So now it's time to take your leave. This was it for today. Now I will see you soon in another session with another interesting topic. Till then, keep learning, keep sharing.